Hello students, good morning. Students, today is 30th November 2020. As you know students, in the last class your PT2 syllabus has been completely finished. Okay, so today I want to recapitalize of chapter 4. The name of the chapter is factors and multiples. So I will start from question number 1. Okay, so look here. So this is your question number 1. In question number 1 it has been given find the first 10 multiples of each of the following pairs of numbers, then list the common multiples. आपको क्या करना है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आपको इसमें लिखने हैं नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर्स के, देन आफ्टर दैट आपको कॉमन मल्टीपल्स को इसको अलग करना है. सो लुक द सॉल्यूशन हियर. ओके, so here first there the first number is 2 and another number is 6. So here you will write first multiples of, you will write multiples of 2, that is related from the first 10 multiples of 2. okay, here you will add it. First 10 multiples of 2 is equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. okay, this is the first 10 multiples of 2. Then another number has been given here 6. So here you will write first 10 multiples of 6. 6, 12, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. So these are the first 10 multiples of 6. Okay, so here it has been asked about that, then list the common multiples. So here you will write common multiples is equal to आपको इसमें कॉमन मल्टीपल्स को चूज करना है. सो लुक हियर, कॉमन मींस ऐसे मल्टीपल्स जो आपके 2 के भी हैं और 6 के भी हैं. सो नाउ वी वांट टू सर्च इट. 2 नहीं है, 4 नहीं, 6 आपका किस में है, 2 में भी है और 6 में भी है. सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 6. देन अनदर नंबर यू कैन चेक इट. 8, 10 नहीं है, 12 है. 12 इज द सेकेंड नंबर, सो दैट इज योर सेकेंड कॉमन मल्टीपल्स. देन after that I find 18 is the common multiples here. Then after 18 there is no common multiples. okay, so you will write the answer is equal to common this is the answer, completely answer. So first answer is this. okay, multiples of 2, 10 multiples of 2 and 10 multiples of 6 and this is the common multiples. so first answer ये है आपका, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चंस पूछे गए एंड अनदर आंसर कॉमन मल्टीपल्स का ये है. ओके, सो डोंट राइट द आंसर सेपरेटली. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 इट हैज बीन गिवन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, देन लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स. ओके, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द मल्टीपल्स आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था. नाउ हियर इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द फैक्टर्स. सो हियर वी विल राइट अबाउट द factors of 14. first number has been given here 14. so here we will find out the factors of 14 firstly. factor means आपको ये बताना है, जैसे 14 डिजिट यहाँ दिया, 14 नंबर दिया है, so ये 14 जो है किस किस नंबर से डिवाइड होता है. so as you know students, it will be divisible by firstly 1. okay, then 14 will be divisible by 7, then 14. After 14 that number, that 14 is not divisible by any other number. So the factors of 14 is equal to 1, 7 and 14. Now another number has been given 21. So now you will find out the factors of 21. अब आप क्या करेंगे, 21 का फैक्टर्स निकालेंगे. So 21 will be divisible by 1, then 3, then 7, then 21. It means 21 किससे डिवाइड हो जाएगा इजी वे में, 1 से हो जाएगा, 3 से, 7 से और 21 से. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 21. सो नाउ इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द देन लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स. सो हियर वी विल फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर. देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, इट मीन्स जो दोनों में है 1, दोनों में है 7. ओके, सो दैट इज योर आंसर. फैक्टर्स आपके ये हैं एंड कॉमन फैक्टर्स ये हैं.
सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ होगा मल्टीपल्स क्या हैं एंड फैक्टर्स क्या हैं. इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स देन यू कैन आल्सो आस्क द क्वेरी विद मी. ओके. So students, your exercise 1 has been finished. Only 2 questions has been given in the exercise 1. So before starting the exercise 2, I want to recapitalize regarding the divisibility rule. Okay, हमने आपको डिविजिबिलिटी के सेपरेट रूल्स लिखवाए थे. सो आई थिंक आप सबके पास वो नोट्स होंगे. सो उसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा. फिर भी हम एक बार रिकैपिटलाइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए. डिविजिबल बाई 2. If in the ones number 0, 2, 4, 6, 8 has been given, so that number will be divisible by 2. यानी कि अगर नंबर में किसी भी नंबर के वंस डिजिट का नंबर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, so that number will be divisible by 2 as like this. Here 262 has been given here. In the ones number the digit is 2. 354 में क्या है 4 है. सो 262 में 2 है, सो ये भी क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा. एंड 354 में वंस नंबर 4 है, सो दैट 354 विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. एंड द अनदर नंबर यू कैन सी अबाउट दैट. अनदर नंबर इज 2790. इन दिस द वंस डिजिट इज 0. So as you know students, if the ones digit is 0, 2, 4, 6 or 8, so that number will be divisible by 2. So here 0 has been given, so it means 2790 will be divisible by 2. Then another number has been given 1286. In this the ones number is 6, so that number will be divisible by 2. And in that thing the number is 76,852. Sorry, 58. 76,858. Here the ones digit is 8 and 8 यहाँ दिया है ones digit, so it means 76,858 will be divisible by 2. Okay, clear? Divisible by 2 का मतलब क्या है? Completely divide होना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचना चाहिए. Okay, so this rules relates on the divisible by 2. Now listen about that. Here 2 के बाद हम 3 लेना चाहेंगे सीरियल से. So here the rules has been given regarding the divisible by 3. Okay, so listen it carefully also. If the sum of the digits of the number is divisible by 3, यानी क्या, जो डिजिट दी है, जो नंबर दिया है उसमें जितनी डिजिट है उनका डिजिट्स का सम करेंगे. अगर वो डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है, so that number will be divisible by 3, otherwise no. For example, here first number has been given 198. So in 198 you can see about that the digits are 1, 9 and 8. So we will add the digits of this number. 1 plus 9 10, 10 plus 8 is equal to 18. And you know students 18 is easily divisible by 3 easily. Okay, 3 6 18, यानी 18 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है. So it means 198 will be also divisible by 3. यानी आपको करना क्या है, जो भी डिजिट्स दी हैं, नंबर्स में जो डिजिट्स दी हैं, आपको उनको टोटल करना है, सम करना है. एंड इफ दैट सम विल बी डिविजिबल बाय 3, सो दैट नंबर विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 3. नाउ यू कैन सी द अनदर नंबर. हियर द नंबर हैज बीन गिवन 688. 688 में आप 688 के डिजिट्स क्या हैं, 6 हैं, 8 है, देन अगेन 8 है. सो आप इन तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे, क्या आएगा 6 plus 8 14, 14 plus 8 is equal to 22. And you know about that 22 will not be divisible by 3. 22 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है. So it means 688 will also not divisible by 3. So here it has been given, therefore 688 is not divisible by 3. यानी क्या, हमारा जो नंबर्स दिए हैं उनके डिजिट का आप टोटल करेंगे, सम करेंगे. इफ दैट सम विल बी divisible by 3, so that digit will be, that number will be divisible by 3, otherwise no. Clear? So after 3 there is the rule relates on the divisible by 4. Look here, that rule relates on the divisible by 4. If the number formed by the last 2 digits is divisible by 4, यानी क्या, जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट के 2 डिजिट, इट मीन्स वंस एंड टेंस को मिलाकर जो भी हमारा नंबर बनेगा, अगर वो 4 से डिवाइड होता है, सो फुल नंबर, complete number will be divisible by 4, otherwise no. So look here, one example has been also given in your book. Number has been given here 3856. In that you can see last 2 digits are 5 and 6. So अगर आप 5 6 को एक साथ पढ़ोगे, that is the 56, and 56 will be divisible by 4 in a easy way. आप जानते हो 56 क्या होता है, 4 से इजी वे में डिवाइड हो जाता है. सो 56 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 3856 विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 4.
अगर हमारा 56 डिवाइड हो रहा है यानी लास्ट के 2 डिजिट्स के जो नंबर हैं वो अगर हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, सो दैट नंबर, दैट कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4, अदरवाइज नो. ओके, फॉर एग्जांपल इन द सेकंड थिंग, हियर द नंबर इज गिवन 2850. यहाँ लास्ट के 2 डिजिट्स के नंबर्स क्या हैं, 5 and 0. सो 5 and 0 मीन्स 50 जब आप 4 से डिवाइड करते हैं, सो 4 से 50 डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा. यहाँ डिवीजन का रूल हमने क्या बताया, कंप्लीटली डिवीजन से रिलेटेड बताया. सो 50 नहीं डिवाइड होगा, सो देयरफॉर 2850 विल आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4. क्लियर स्टूडेंट्स? सो हमने आपको किसके रूल बताए, 2 के बताए, 3 के बताए, 4 के बताए. नाउ लिसन अबाउट द रूल्स रिगार्डिंग द डिविजिबल बाय 5. So you can see it here. Here the rules has been given, divisible by 5. If it ends in 0 or 5, it means if the ones digit of any number is 0 or 5, so that number will be divisible by 5, otherwise no. यानी कि अगर कोई भी आपको नंबर दिया है उसका वंस डिजिट क्या है, 0 है या 5 है, सो वो नंबर क्या होगा आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नो. सो हियर यू कैन सी एग्जाम्पल हैज बीन गिवन रिगार्डिंग दिस 95. In 95 you can see the ones digit is 5. 95 में ones digit क्या है, 5 है, so it means that number will be divisible by 5. Okay, same thing you can check about it. 4450. In 4450 the ones digit is 0. इसमें क्या ones digit 0 है, so it means that number will be also divisible by 5. It means 4450 will be divisible by 5. Another example has been given here, 7565. In this number you can see the ones digit is 5. यहाँ ones digit क्या है, 5 है, so it means 7565 will be also divisible by 5. Then another number you can see 34850. another number क्या दिया आपको, 34850 दिया है. in this number you can see the ones digit is 0. ones digit क्या है यहाँ पर, ये 0 दिया है, so it means that number will be also divisible by 5. इट मीन्स अगर किसी भी नंबर का वंस डिजिट 0 है या 5 है, सो वो नंबर क्या होगी आपसे 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी. क्लियर? सो नाउ सी द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट डिजिट इज 6. सो 6 का रूल क्या है, इट हैज बीन ऑल्सो गिवन इन योर बुक. लुक हियर, डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. यानी अगर कोई नंबर दिया है वो आपका 2 और 3 दोनों डिजिट से हमारे डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर, सो दैट नंबर विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 6. फॉर एग्जांपल 72 हैज बीन गिवन हियर. इन 72 यू कैन सी अबाउट दैट लास्ट में यानी वंस डिजिट क्या दिया है, इसमें 2 दिया है, एंड यू नो द रूल ऑफ द डिविजिबल बाय 2. इफ द वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, so that number will be divisible by 2, otherwise no. So here the ones digit is 2, so it means 72 will be divisible by 2. Okay, then we will check about the divisibility related from the 3. 3 के लिए क्या करते हैं आप, डिजिट्स को ऐड करते हो, तो 7 + 2 = 9. 9 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है, बिकॉज 3 3 = 9. सो 9 से भी हमारा 9 भी टोटल आ रहा है, 9 क्या हमारा 3 से डिवाइड होता है, सो इट मीन 72 हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से हो रहा है, सो इट मीन्स दैट नंबर विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 6. रिमेंबर स्टूडेंट्स, 6 से डिवाइड होने के लिए जो भी नंबर दिया है उसको 2 से भी और 3 से भी दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होना कंपलसरी है. देन अगर वो दोनों से डिवाइड हो जाता है विदाउट एनी रिमाइंडर, सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6, अदरवाइज नो. ओके, सो रिमेंबर अनदर नंबर हैज बीन गिवन हियर 198. इन 198 द वंस डिजिट इज 8. सो वंस डिजिट अगर 8 है तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो ही जाएगा आपका, हमने आपको रूल बताया है. वंस नंबर में अगर हमारा वंस डिजिट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर किसी नंबर में, सो नंबर क्या होता है 2 से डिवाइड हो जाता है. इट मीन्स 198 विल बी डिविजिबल बाय 2. नाउ वी विल चेक अबाउट द डिविजिबिलिटी बाय 3. 1 + 9 10, 10 + 8 18. 198 का हमने डिजिट्स का टोटल किया, तो हमारा डिजिट का टोटल क्या आया, सम क्या आया, 18 आया, एंड 18 विल बी डिविजिबल बाय 3. इट मीन्स 198 विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. So I think students divisibility by 6 also clear to you. Now see the another thing, divisible by 9. 9 का भी बेटा वही रूल है, डिजिट्स का आप टोटल करेंगे, जो 3 का रूल है डिजिट्स का टोटल करेंगे, अगर डिजिट्स का टोटल 9 से डिवाइड हो रहा है, so that number will be also divisible by 9, otherwise no. Here if the sum of the digits of the number is divisible by 9, that is the rule. So one example has been given 693.
In 693 you can see about that the digits are 6, 9 and 3. It means you will add it 6 plus 9 plus 3. So 6 plus 9 is equal to 15. 15 plus 3 is equal to 18. 18 हमारा 9 से divisible होता है. So it means 693 will be also divisible by 9. Another example has been also given here. 984. 984 में डिजिट्स क्या है? 9 है, 8 है एंड 4 है. सो हम इनको ऐड करेंगे 9 प्लस 8 प्लस 4. सो 9 प्लस 8 17. 17 प्लस 4 इज इक्वल टू 21. एंड यू नो अबाउट दैट स्टूडेंट्स, 21 9 से डिवाइड नहीं होता है. सो इट मीन्स 984 विल ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9. क्लियर? नाउ द लास्ट रूल रिगार्डिंग द डिविजिबल बाई 10. 10 बहुत सिंपल रूल है. अगर वंस डिजिट 0 है सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 10, अदरवाइज नो. यानी अगर किसी नंबर का वंस डिजिट 0 होता है सो नंबर हमारा क्या होगा? 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं. सो 50 दिया है, वंस डिजिट क्या है? 0 है, सो 10 से डिवाइड हो जाएगा. 430 है, वंस डिजिट 0 है, सो 430 भी हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा. 5670 है, वंस डिजिट 0 है, इट मीन्स 5670 will be also divisible by 10. Then at last the number has been given 45,780. So here the ones digit is 0, so it means 45,780 will be also divisible by 10. So students, I think आप सबको रूल्स ये रिकैप्चुलाइज हुए होंगे, समझ में आए होंगे. इफ यू हैव एनी डाउट देन स्टूडेंट्स आप अपने फेयर कॉपी पलटिए, चैप्टर 4 पर आइए. हमने सब रूल्स लिखाए हैं पहले. ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 2. सो लुक एंड लिसन केयरफुली. Here you can see students in question number 1 of exercise 2 it has been given put a tick on the number that are divisible by. आपको उस नंबर पर टिक लगाना है जो नंबर डिवाइड होती है. बी पार्ट दिया 5. इट मीन्स ऐसी कौन सी नंबर है जो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा. सो यू नो अबाउट द रूल. आपको बेटा इसके लिए जितने भी हमने रूल्स लिखाए हैं या समझाए हैं अभी, डिविजिबिलिटी बाई दैट डिजिट, सो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए. अगर आपको ये सब याद होंगे तो आप इसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो लुक हियर. फर्स्ट नंबर हैज बीन गिवन 56. यू नो द रूल रिगार्डिंग द डिविजिबल बाई 5. इफ द वंस डिजिट इज 0 और 5 in any number, so that number will be divisible by 5, otherwise no. So here first number is 56. In 56 you can see the ones digit is 6. वंस डिजिट में 6 है और 5 के लिए क्या रूल है? 0 या 5 होना चाहिए. सो इट मीन्स दैट नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5. देन अनदर डिजिट नंबर हैज बीन गिवन 65. इन 65 द वंस डिजिट इज 5. So you know about the rule of the 5. If the ones digit is 0 or 5, so that number will be divisible by 5, otherwise no. It means you will put the tick mark here. Then another number is 160. In 160 the ones digit is 0, so 0 है, so it means that number will be also divisible by 5. Then 745 is the another number. In this the ones digit is 5. 745 में ones digit क्या है? 5 है, so it means that number will be also divisible by 5. Then last number has been given 551. इसमें वंस डिजिट क्या है? 1 है, 0 और 5 नहीं है. सो इट मीन्स 551 विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5. सो यू विल राइट द आंसर 65, 160 एंड 745. Clear students? Now students see the question number 2. In question number 2 it has been given put a tick on the numbers that are divisible by. आपको उस नंबर पर टिक करना है जो नंबर डिवाइड होते हैं. क्या बी पार्ट दिया है 9 से. ओके, यू नो द रूल डिविजिबल बाई 9. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाई 9, सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9, अदरवाइज नो. इट मीन्स अगर डिजिट्स जो दी हैं किसी नंबर में, आप उसका टोटल करेंगे, सम करेंगे. अगर वो सम हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है सो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ओके, सो आई विल चेक इट हियर. सो लुक हियर. 98 has been given. In 98 the numbers has been given, digits has been given 9 and 8. So 9 और 8 को आप ऐड करेंगे, सम करेंगे. So 9 plus 8 is equal to 17. 17 you know about the rule regarding the divisibility of 9. सम हमारा क्या है? 9 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 17 9 से डिवाइड नहीं होता है. सो इट मीन्स 98 will also not divisible by 9. Then another number you can see here. The number has been given 123. In this number the digits are 1, 2 and 3. Now you will add it.
1 plus 2 3, 3 plus 3 6. 6 will not be divisible by 9. 6 क्या 9 से डिवाइड नहीं होगा. It means 123 will also not divisible by 9. Now we will see the third number. In third number the digits are, the third number is 162 and the digits are 1, 6 and 2. Now we will add it. 1 plus 6 is equal to 7. 7 plus 2 is equal to 9. टोटल कितना आया आपका, सम कितना आया, 9 आया. इट मीन्स that number will be also divisible by 9. So here you will put the tick mark. Okay. Now the another number has been given 540. In 540 the digits are 5, 4 and 0. So you will add it. 5 plus 4 is equal to 9. 9 plus 0 is equal to 9. So it means that number will be also divisible by 9 because 9 से 9 हमारा डिवाइड हो जाएगा. सो ये जो हमारा नंबर दिया है 540 ये भी हमारा क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा. ओके. सो नाउ लास्ट नंबर इज 9981. नाउ वी विल ऐड इट. सम हम करेंगे हम डिजिट्स का. 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 1 is equal to 27. And you know about that 27 will be also divisible by 9. It means 9981 will also divisible by 9. So here you will put the tick mark. So you will write the answer here. Answer 162, 540 and 9981. Okay. So these number will be divisible by 9. So I think students now it's clear regarding the divisibility rule. Please revise it and check it. If you have any doubt, then students you can also ask the query with me without any hesitations. Okay. So आज की क्लास में इतना ही.